Have you ever wondered what you might be doing wrong that others are doing right? Even after studying for like 6 months, 1 year, and more, sitting for like 6 to 8 hours, referring all the competitive books recommended by your friends, seniors, and you are done watching all those successful stories being aired or posted on YouTube and other social media. But you are failed. So the reason behind it, you are not understanding the 70 is to 30 rule. That is 70% of the MCQs will come from 30% of your syllabus. तो बेसिकली जो 70% क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में वो 30% सिलेबस में से आने हैं एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग व्हिच इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. So, hello and welcome to the platform of Nursing Success Academy. Here we provide in-depth knowledge on the key subject matters and also keep you updated on the latest vacancies. So, so basically this is the first part of the video. I'm going to post the second part also. So whenever you are preparing for any nursing examination, first thing you need to do is you have to understand the requirement and pattern of the exam, or that is always different. Like in some examinations, all you have to do is you have to go through the nursing subjects and that's it. But kuch exams may they might going to ask you aptitude, including logical reasoning questions, GK and current affairs. So first of all, try to understand the requirement. And secondly, if you are preparing for एग्जाम्स लाइक एमएससी नर्सिंग एंड नर्सिंग ट्यूटर एग्जामिनेशन, तो उस उन एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि आपसे कुछ सब्जेक्ट्स का ज्यादा पोर्शन दे आर गोइंग टू आस्क. लाइक in the NORCET, they're never going to pay that much attention to the research and statistics, management and education subject, whereas in the case of MSc and nursing tutor, uh, greater emphasis will be given in those areas also. So that is something you need to understand. जब आपने ये सब कुछ कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना है, you have to start from the major subject, minor subjects and others, which the way I'm going to tell you. तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसमें बेसिकली आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्री and obstetric and gynecology. So these are your major subjects, you can write it down. And minor subjects जो हैं those are community health education, research and statistics and management. So what you have to do is try to complete major subject first, then followed by the minor subject. जब आपने मेजर भी कंप्लीट कर दिया, माइनर भी, तो वी हैव अदर सब्जेक्ट्स लाइक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर. So whenever you started preparing or covering the MSN part, first of all you have to go through the anatomy and physiology. तो anatomy and physiology तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आपका मेजर भी हो गया, माइनर भी हो गया, जिसमें MSN कंप्लीट करते हुए एनाटमी भी हो गया, और आपके पास अभी भी टाइम है, यू हैव लाइक 2 to 2.5 months मोर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, तो यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू दीज अदर सब्जेक्ट्स विच आई हैव मेंशन्ड. बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवाइज द मेजर, minor subject and that's it. You can ignore these other subjects which I have mentioned because क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. अगर वो नहीं भी आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द टाइम यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट कवरिंग दी सब्जेक्ट्स इज गोइंग टू गेट वेस्टेड. तो आपको स्ट्रेटेजी ऐसे बनाना है कि मेजर देन माइनर. So let's begin with the fundamental of nursing. I am again suggesting you to sit down with the copy and pen so that you can write the subtopics or instruction I'm going to give you in the later slides. So first one is the chain of infection. Chain of infection में आपको simple सा question आ सकता है कि what is the first link to the chain of infection, or you can get questions like reservoir क्या है, ठीक है, उसमें what is happening in the reservoir actually, what is the different modes of transmission of infection like droplet, airborne, fecal oral, bodily fluids and all that stuff. So you are going to get questions like this. उसमें host भी आता है तो host पे भी questions आ सकते हैं. So this is the chain of infection which you need to study. Second is the hand hygiene. So you might be thinking that hand hygiene में तो steps of hand washing ही है. No, so it's a very vast topic. So you can get questions like what agents are being used
for the hand washing technique, or what are the different types of hand washing, like surgical है, medical है, कितना time लगेगा, like in alcohol health drugs isopropyl ethanol use होता है, what is the concentration which we are using, chlorohexidine है उसका क्या concentration होता है, what are different surgical scrubs. So all these questions you are going to get. And next is the personal protective equipment. So it is very important, and even after the कोविड वी आर गेटिंग क्वेश्चंस ऑन द डॉनिंग एंड डॉफिंग. तो पीपी का पता होना तो ठीक है, बट इसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो कि विच हाउ वी आर गोइंग टू डॉन, किसके बाद क्या पर्सनल प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट पहनना है और डॉफ कैसे करना है, वो भी सारा प्रोसेस पता होना चाहिए. और इसके साथ एक और चीज है विच यू नीड टू लर्न इज, you can write it down, is the hierarchy of safety and health control. So there is a hierarchy of safety and health control, उसको भी एक बार देख लेना और पढ़ लेना. You can also get questions from that. Next is the biomedical waste. So biomedical waste management कितना important है, I cannot put more emphasis on this topic, but you can understand कि different color coding क्या है, कोई नया rule आया है, is there any new amendment going on, कैसे वेस्ट जो है कितने टाइम तक रख सकते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस व्हिच वी आर मेकिंग और पुटिंग इट इन दोज बकेट्स, किसमें सॉल्यूशन डालना है किसमें नहीं डालना है, इंसिनरेशन प्लांट एंड ऑल. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच यू कैन गेट. ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लडी प्रोडक्ट्स जो हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो पैकेट्स है वो कहाँ पे डिस्कार्ड करने हैं, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन easily get on the biomedical waste. Next is the hospital acquired infection. So hospital acquired infection जो आपके हैं क्लेब्सी, कॉटी, वैप, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं. तो इनका इनका ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम तक हॉस्पिटलाइज होके, मतलब डायग्नोसिस कैसे होता है, तो यू हैव टू नो द डायग्नोसिस कैसे हो रहा है, एंड अदर देन दैट व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच वी यूजुअली आर फॉलोइंग, एंड कॉटी बंडल्स के पूरे पॉइंट्स आपको टिप्स पे आने चाहिए. द नेक्स्ट इज दी वाइटल साइंस. वाइटल साइंस में अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना ही है, ऐसे नहीं. दे कैन गिव यू अ tricky questions, right? So they can ask you, I'm just giving an example, they can ask you question like a disposable thermometer, for how long we are going to keep a disposable thermometer in the oral cavity. तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए. एंड फॉर हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट टू गेट द करेक्ट रीडिंग इन द disposable thermometer. So it's like 10 seconds we have to wait to get the accurate reading. So ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा पल्स पे आ सकता है, पल्स स्ट्रेंथ ग्रेड होती है, डिफरेंट पल्सेस की साइट्स पता होनी चाहिए आपको. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फीवर एंड इट्स टाइप्स. तो इस बार भी एक रिसेंट नॉर्सेट में, जो लास्ट नॉर्सेट है, उसमें क्वेश्चन आया था फीवर से रिलेटेड. अगर आपने दिया होगा तो यू माइट बी नोइंग अबाउट दैट. और इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स का, कि कितना से कितना टेम्परेचर होता है, ये भी पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए. दे कैन गिव यू सिंपल क्वेश्चंस लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन और ड्राई हीट एप्लीकेशन. ठीक है. तो नेक्स्ट इज द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में दे कैन ask you questions like route calculations, rights, medication errors, or the question on the needle stick injury. तो needle stick injury में what is the procedure? Once you get needle stick injury, what you are going to do? Where you have to report? What investigations are needed to be done? And what you are going to see in your patients जिसका needle आपको लग गया है. और hepatitis B क्या क्या सिनेरियो रहेगा, इफ यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, टाइटर वगैरह चेक कराएंगे, तो यू हैव टू रीड इट इन डिटेल. नेक्स्ट इज दी सीपीआर. सीपीआर आप इसमें भी पढ़ोगे और एमएसएन में भी पढ़ोगे, कार्डियो में. तो सीपीआर में तो पता ही है, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, डबल रेस्क्यूअर है तो क्या होगा. और दे कैन गिव यू क्वेश्चंस ऑन दी डिफिब्रिलेटर और बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है. What are the drugs which we are using, when we can repeat, what is the dosage, what is the shockable and non shockable rhythm, दोनों का अलग अलग मैनेजमेंट है जो आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द सीपीआर. इसके अलावा नेक्स्ट है वूंड मैनेजमेंट. वूंड मैनेजमेंट में आपको आएगा वूंड हीलिंग फेजेस, वूंड ड्रेसिंग. वूंड ड्रेसिंग में से ट्रांसपेरेंट फिल्म लगाते हैं हम सेंटर लाइन के ऊपर, एंड समटाइम्स वी यूज हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग्स. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट.
एंड द नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक पोजिशंस. तो इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और लाइक दे कैन गिव यू अ सिनेरियो, पेशेंट हैज अंडरगोन दिस सर्जरी, तो पोस्ट ऑपरेटिवली विच position we are going to give to the patients. So you can get questions like this. नेक्स्ट इज द प्रेशर अल्सर. प्रेशर अल्सर्स में तुमसे स्टेजेस पूछ सकते हैं, तुम्हें इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एंड उसमें ब्रैड एंड रिस्क असेसमेंट स्केल होता है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. The next is the oxygen therapy. The oxygen therapy में first you need to understand what are the low flow oxygen devices, what are the high flow oxygen devices. फिर इसमें वेंचुरी मास्क पे कलर कोडिंग पे क्वेश्चन आता है, नॉन रीब्रीदर मास्क पे क्वेश्चन आता है, नेजल प्रॉन्ग्स और नेजल कैनुला पे क्वेश्चन आता है, ह्यूमिडिफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन ह्यूमिडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, और कितना ऑक्सीजन, इफ द पेशेंट सेचुरेशन इज फॉलिंग ऑफ, तो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन वी एज अ नर्स कैन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, तो कितने लीटर पे हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं. तो ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू कवर. तो इमेज बेस पे आ सकते हैं, एंड दे कैन गिव यू अ सिनेरियो एंड दे कैन आस्क यू आल्सो. इसमें सक्शनिंग पे, सक्शनिंग और टीटी केयर मैंने साथ में लिख दिया है, तो इस पे भी यू नो दैट कि कितना टाइम सक्शनिंग के प्रोसीजर पे टोटल लगना चाहिए, दैट रोटेटरी मोशन में रिमूव करना है, कैराइना से कितना सेंटीमीटर ऊपर रखना है, पहले ओरल सक्शन करना है कि ईटी सक्शन करना है. दे आर डिफरेंट सक्शन कैथेटर्स, राइट. तो डिफरेंट सक्शन कैथेटर्स में टीटी के लिए कौन सा सक्शन कैथेटर यूज होता है, ईटी के लिए कौन सा सक्शन कैथेटर यूज होता है, हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दैट सक्शन चार्ट, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, टीटी केयर के लिए कैसे करते हैं, व्हेन वी नीड टू डू इट, अगर अगर पेशेंट का टीटी बाहर आ गया, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब बाहर आ गया, तो व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू लुक आफ्टर. और इसके अलावा आता है तुम्हारा यूरिनरी कैथेटराइजेशन. तो कैथेटराइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैथेटराइज अ पेशेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन indwelling catheterization and intermittent catheterization, what are different sizes of Foley's catheter, different types of catheter, silicone है, latex है, what is the difference between that, किसको कितने टाइम तक रख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है कि कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट यूरिन सैंपल ऑफ अ कैथेटराइज्ड पेशेंट. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा है आईवी कैनुलेशन. तो आईवी कैनुलेशन पे ऑफ कोर्स यू कैन गेट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आल्सो, और इसमें एक वीआईपी स्कोरिंग आती है, जिसमें दे टेल यू अबाउट डिफरेंट स्टेजेस लाइक फ्लेबाइटस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटस, तो ये वीआईपी स्कोरिंग भी पढ़ना है. इसके अलावा जो आईवी कैनुलेशन में इंपॉर्टेंट है is the infiltration and extravasation. तो you should know the difference between the both, क्योंकि ये बहुत ज्यादा commonly पूछा जाता है. Next is the blood transfusion. तो blood transfusion में you should know the responsibility, your responsibility as a nurse before, during and after administering the blood to the patient, or how we are going to collect blood, where we can store in wards, at what temperature, for how long we can store blood products. ठीक है, if there is a blood product which is damaged, or you find something, some precipitation or something sort of thing in the blood, then how you are going to return it to the blood bank. So such questions you need to get the answers of. नेक्स्ट इज अनीमा. अनीमा में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमा हो गया, पोजीशन हो गया, इस सभी पे क्वेश्चंस आते हैं. एंड यू कैन आल्सो गेट क्वेश्चंस ऑन दी नर्सिंग प्रोसेस. नर्सिंग प्रोसेस पे भी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट इज द मास्लो हायरार्की थ्योरी. तो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, और ये वैसे भी आई थिंक सभी को आती आती है. नेक्स्ट इज द बॉडी मैकेनिक्स. बॉडी मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है. एबीजी, एबीजी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ते हैं, एमएसएन में भी पढ़ते हैं. तो कुछ चीजें ऐसे होती है कि दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं, मे बी एमएसएन में हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट समटाइम स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो एमएसएन का क्वेश्चन है, एमएसएन से, बट वो फंडामेंटल का होता है. तो एबीजी का आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि patient was having this much episodes of vomiting since midnight and bring to ER. So what kind of acid base balance is supposedly be present in the patient? And apart from that, they can also ask what kind of acid base balance can be seen in the patient of DKA, or they can give you values of mm, pH value, PaCO2 value, PO2 value, and you have to identify कि कौन सा एसिड बेस बैलेंस है. तो उसमें यही पता नहीं होना चाहिए कि हाँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, तो पार्शियल है, कंप्लीट है, ये पूरा पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स
पे भी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. अगर आपने इतना पढ़ लिया तो लेट मी टेल यू माय डियर, आपका हो गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग व्हाट यू हैव लर्नड. Now coming towards the obstetric and gynecology. So I am again telling you that this video will be a bit lengthy, but अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो that will be a beneficial for you, very very beneficial for you, because that's how I cracked all examination, and this strategy helped me a lot. So let's start with the OBG. OBG में क्या है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. तो यू कैन बेसिकली गेट द क्वेश्चंस ऑन दी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कैपेसिटेशन क्या है, oogenesis क्या है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा आ सकता है. ठीक है, फिर आफ्टर इम्प्लांटेशन वी स्टार्ट कॉलिंग एंडोमेट्रियम डेसिडुआ. तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डेसिडुआ, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, योक सैक क्या है. तो पूरा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू दैट. नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा पे तो तुम्हें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो उसमें तुम्हें क्या कवर करना है? फीटल एंड मैटरनल सरफेसेस नॉर्मली क्या है, एंड फीटल एंड मैटरनल सरफेसेस का एबनॉर्मेलिटीज क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेसेंटा का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, हिस्टोलॉजी क्या है, व्हाट इज अ कॉटिलिडन, प्लेसेंटा का सर्कुलेशन क्या है, ये सब कुछ आपको प्लेसेंटा में पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल मेम्ब्रेन्स. तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है एमनियोटिक फ्लूइड की, पीएच क्या है, सब पता होना चाहिए. लेट मी गिव यू वन मोर एडवाइस, कि जब भी आप कोई नॉर्मल वैल्यूज पढ़ते हो, तो नॉर्मल वैल्यूज तो हर सब्जेक्ट में आती रहेंगी, तो ट्राई टू write it down in one place. Either you can write in the back side of your notebook, ठीक है, या फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन राइट इट डाउन ऑन अ पेज एंड पेस्ट इट ऑन द वॉल, जहां पढ़ने बैठते हैं, या फिर जो आपका रूम है, ताकि आप बेड पे भी बैठे हैं तो यू कैन हैव अ लुक, यू आर सिटिंग ऑन चेयर, यू कैन हैव अ लुक. समटाइम्स क्या होता है कि सम पीपल हैव गुड इमेज मेमोरी, तो बार बार देख के याद हो जाती है, बट ट्राई टू कीप इट इन अ सेम एरिया, एक ही जगह पे, ताकि क्योंकि एक दिन बचेगा जब आपके पास एग्जाम के लिए, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं. और ऐसा ही करना ट्रायड का भी, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी एनी डिजीज, तो एक जगह पे ट्रायड लिख देना, ताकि फाइनली जब आप फाइनल रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम बचा होता है, उस लास्ट डे पे आप ट्रायड्स को एक बार में ही सारे देख ले. So this was extra suggestion or advice if you feel like you can have it. तो इसमें ये मैं कहाँ पहुंची थी? एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल मेम्ब्रेन्स के बारे में बात कर रही थी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पीएच पता होना चाहिए, और इसमें ओलिगोहेड्रोमनियास, पॉलीहेड्रोमनियास पे क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड व्हाट आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, व्हाट आर द माइनर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, व्हाट आर द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, एंड अलोंग विद दैट कंडीशन कि ये एबनॉर्मेलिटी है एमनियोटिक फ्लूइड में, एंड दिस इज सीन इन दिस कंडीशन. तो ये भी पता होना चाहिए. इसमें आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, लाइक दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस, is amniotic fluid a source of nutrition to fetus? So the answer of this question is no, it is not. तो ऐसे ट्रिकी भी आ सकते हैं क्वेश्चन. तो जैसे जैसे कोई कोई टॉपिक पढ़ोगे, यू हैव टू डू द एमसीक्यूज ऑल्सो. सो नेक्स्ट इज द बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसमें ड्यूरेशन कितना होता है, ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज जीटी पैल सिस्टम, व्हाट आर द साइंस यू आर गोइंग टू सी ड्यूरिंग द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चैडविक साइन, गुडेल साइन, ये सारे सब पढ़ना है कि पहली में क्या दिखता है, दूसरे और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखता है. एंटीनेटल केयर. एंटीनेटल केयर में यू शुड नो व्हाट आर द टोटल विजिट्स, कितने टोटल विजिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज बीइंग फॉलोड इन आवर कंट्री, एंड व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच वी डू ड्यूरिंग दीज विजिट्स. पहली विजिट में क्या होगा, दूसरी पे कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा, व्हाट इज फॉलिक एसिड, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी. इम्यूनाइजेशन, लाइक टीटी लगना है मदर को कि नहीं लगना है. एंड एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू आर गोइंग टू गिव टू द मदर ड्यूरिंग द एंटीनेटल फेज. अनदर वन इज ए डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम में तुम्हारा कैसे डायग्नोसिस होगा, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे, वो सब पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द एनएसटी सीएसटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली नॉसेट में भी एग्जाम आया था वेरिएबल डिसलरेशन का, तो यू शुड स्टडी दिस एनएसटी इन डिटेल. अनीमिया हो गया, अनीमिया इन प्रेगनेंसी.
डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एंड हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। इन सब टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आप हॉर्मोन्स इन प्रेगनेंसी पढ़ लेना। बेसिकली कौन से हॉर्मोन्स, एक एचसीजी पढ़ना है, लाइक उसका आइडिया होना चाहिए। लाइक एचसीजी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, और नॉर्मली इट हैज अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, ऐसे ऐसे करके एचसीजी हार्मोन पढ़ना है, एचपीएल हार्मोन पढ़ना है, एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पढ़ना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। तो ये पढ़ना है, उसके बाद ये सारी डिजीज कंडीशंस पढ़नी है, ठीक है। जब पढ़ोगे तो यू विल गेट एन आइडिया व्हाई आई हैव सेड दिस। नेक्स्ट इज द ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो अबॉर्शन आ जाता है इसमें। अबॉर्शन में डिफरेंट टाइप्स है, आपसे उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, भी अच्छे से पढ़ना है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं 20 वीक्स 24 वीक्स, तो वैसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से इस चीज को पढ़ना है। नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उस पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, उसके बाद डिफरेंट साइट्स क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। उसके बाद पीपीएच, पीपीएच पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरा मैनेजमेंट पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। एंड सिंड्रोम्स इन गाइनी, वट एवर आई हैव मेंशन्ड, एटलीस्ट इनको तो पढ़ के ही जाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, वो भी इंपॉर्टेंट है। वेजिनाइटिस इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सो टेम्परेरी पता होना चाहिए, परमानेंट पता होना चाहिए, नेचुरल पता होना चाहिए। एंड जो तुम्हारा फैमिली नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, व्हाट इज बीइंग इंक्लूडेड इन इट, जैसे कि मेल कॉन्डम निरोध इज इंक्लूडेड, फीमेल कॉन्डम है, FC2 स्पॉन्ज है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कॉपर टी आईयूडीज के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सिंपली दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक कि कॉपर T380A कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है। तुम्हारा और क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपर टी एंड मिराना, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है तुम्हारा आईयूडी का। और इस पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो टाइम ऑफ इंसर्शन क्या है, जैसे कि इफ रेगुलरली इफ रैंडम फीमेल comes and tells you that she wants to have copper T inserted, so what is the best time? So we can say that first 5 days of the cycle are best, but first 10 days ले लेते हैं। उसका रिसेंटली डिलीवर्ड है तो उसका क्या होगा, अगर रिसेंटली डिलीवर्ड का जैसे बोलते हैं 24 आवर्स में कर देना चाहिए, अगर 24 आवर्स में नहीं किया तो फिर नेक्स्ट कब कर सकते हैं। ओरल contraceptive pills क्या हैं, what are the side effects of oral contraceptive pills, what are the contraindications of those। तो ये सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब कुछ आना चाहिए। अंतरा पे क्वेश्चन आ जाता है, सहेली और छाया जो बोलो उस पे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है, कि उनका क्या रोल है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द मैटरनल पेल्विस। तो इसका एनाटमी, वो डायमीटर्स वगैरह सब पता होना चाहिए। फिटल प्रेजेंटेशन भी पढ़नी है। और फिटल स्कल में ये कैपेट सक्सिडेनियम एंसेफल हेमाटोमा पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ोगे, और इसमें भी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर पेन। What is true labor pain? What is false labor pain? What is the difference between the both? And another is the induction of labor. How you can decide that it's right time to induce labor? ठीक है, तो वी हैव अ बिशप स्कोर, वो भी पता होना चाहिए आपको। स्टेजेस ऑफ लेबर पूरी पढ़नी है, इसमें कोई वो नहीं है, डिटेल में पढ़नी पड़नी है सारी की सारी स्टेजेस ऑफ लेबर, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज द एपिजियोटमी। एपिजियोटमी के जैसे टाइप्स कौन से होते हैं, एंड व्हाट वी प्रेफर, इसी के अंदर ही आप वेजाइनल टीयर भी साथ में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज द प्री टर्म लेबर मैनेजमेंट, कैसे करना है, माल प्रेजेंटेशन कैसे मैनेज करना है, फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप डिलीवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं लोग क्यों इतना कंफ्यूज रहते हैं। इन द रीसेंट नॉर्सेट एग्जाम some of my students were telling कि मैम कील एंड फोर्सेप का इमेज आया था, some were telling me रिगले फोर्सेप का आया था। तो there is a clear cut difference between the both, बट स्टूडेंट्स वर वेरी कंफ्यूज। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन तो आएगा ही। तो इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है कि आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। So this was all about the obstetric and gynecology. Let's begin with the pediatrics now. The first topic is diarrhea. So diarrhea में आपको definition पता होना चाहिए, what are the different types, ठीक है। diarrhea में management के लिए you need to understand the
dehydration. So dehydration, if some no dehydration, some dehydration, severe dehydration, तो according to the level of dehydration the management is done. तो साथ साथ में पढ़ सकते हो, प्लस इसमें ORS भी आप पढ़ोगे तो वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा फीटल सर्कुलेशन, आई नीड नॉट टू गिव एम्फोसिस और टेल यू कि कितना इंपॉर्टेंट है फीटल सर्कुलेशन. इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस, तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि साइनोटिक एंड एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस. और नेक्स्ट इज द हाइड्रोसेफलस, और हाइड्रोसेफलस आप एमएसएन में भी पढ़ोगे नर्वस सिस्टम के अंडर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नॉर्मल सीएसएफ फ्लो. तभी मैंने बोला था कि एनाटमी भी अगर आप साथ साथ में पढ़ लो इफ नीडेड, तो दैट विल बी ग्रेट. ठीक है. तो नॉन कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जो टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स वी यूजुअली सी इन सच पेशेंट्स, और इंटरवेंशंस. मैनेजमेंट पार्ट से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है. वीपी शंट पे, वीपी शंट अगर डिसलोकेट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल बी दी थिंग्स विच पेरेंट्स हैज टू लुक आफ्टर, उनको क्या हेल्थ एजुकेशन देना है, ये सब कुछ पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द टॉर्च इन्फेक्शन, ऑफ कोर्स इट इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज द माल न्यूट्रिशन, तो सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन. तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाशिकोर एंड मरासमस, पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर. ठीक है. इसके अलावा मैनेजमेंट पूरा पता होना चाहिए आपको. नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, अगर ये पता लग गया तो ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वास्टिंग एंड स्टंटिंग. कौन से WHO ग्रोथ चार्ट्स हम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई इट. और इसके अलावा देयर इज अ थिंग कॉल्ड रीफीडिंग सिंड्रोम. ठीक है, तो रीफीडिंग सिंड्रोम भी इसी के अंडर आएगा, वो भी आपको पढ़ना है. तो ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द डेंगी एंड कावासाकी. कावासाकी का क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है, एंड व्हाई वी नीड टू डायग्नोस इट एज सून एज पॉसिबल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पढ़ना है, एंड ये सारी डिजीजेस पढ़नी है, मीजल्स, मम्स, वेरिसेला, टाइफाइड. आप ये तो बताने की जरूरत है नहीं आपको कि इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है. कोल्ड चेन क्या है, आईडी इंट्राडर्मली कौन सी वैक्सीन दे रहे हो, कौन कौन से टेम्परेचर पे कौन कौन सी वैक्सीन यू हैव टू स्टोर, लाइव वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन, ये सब कुछ क्वेश्चंस आपको आते ही हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज दी नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, phenylketonuria, tracheoesophageal fistula, pharyngitis, croup, diphtheria, pneumonia. Specifically the management part, very very important. Cystic fibrosis disease condition पूरा समझ आना चाहिए कि what is happening over there. And another one is the asthma and its management. uh, ये इसमें भी पढ़ोगे और वहां पे भी MSN में भी पढ़ोगे कि what management has to be given. ठीक है. इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि इफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया है पेशेंट को, और एडवाइस किया है पेशेंट को, ब्रोंकोडायलेटर भी एडवाइस किया है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर फर्स्ट, है ना, फॉलोड बाय दैट. ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं. तो नेक्स्ट इज द डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप. इस पे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, और इसमें टेस्ट करते हैं ऑर्टोलानी एंड बार्लो टेस्ट. ठीक है, तो कौन से टेस्ट में रिलोकेट हो रहा है, कौन से टेस्ट में डिसलोकेट हो रहा है, दे कैन इवन आस्क यू दैट, दे कैन गिव यू इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस. एंड ट्रैक्शंस जो बच्चों में यूज होता है, इसमें भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, रिडल लूप ट्रैक्शन हो गया, बक ट्रैक्शन हो गया, एक्सेट्रा. देन हाइपोस्पेडियासिस, एपिस्पेडियासिस आ सकता है. RHD इसमें भी पढ़ोगे, MSN में भी पढ़ोगे. इन न्यूनेटोलॉजी यू शुड नो न्यूनेट क्लासिफिकेशन क्या होती है, टर्म न्यूनेट उसके पैरामीटर्स क्या है, प्री टर्म न्यूनेट का क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ. एंड ऑफ कोर्स हाइपोथर्मिया, और अभी न्यूबॉर्न पैदा हुआ तो अपगार स्केल वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम चेक करते हैं. न्यूबॉर्न रिससिटेशन आनी चाहिए पूरी. कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया से क्वेश्चन आ सकते हैं. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से काफी बार क्वेश्चन आए. एंड रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस भी सारे पता होने चाहिए. ठीक है. when you are going to see those reflexes and when they are going to vanish, or they can even ask you कि at what gestational age some reflexes may arise or arrive at the gestational age. तो you have to have that idea कि कौन सी gestational age पे कौन कौन से reflexes आ जाते हैं.
सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको ऑन द टॉपिक्स लाइक एरिथमा टॉक्सिकम, मंगोलियन स्पॉट्स, कैपिलरी हेमेंजियोमा, मीलिया, एप्स्टीन पर्ल, हाइमन टैग, विजाइनल ब्लीड, गैलेक्टोरिया और एरोफेजी। इस पे इमेज बेस भी आ सकता है और सिंगल लाइनर भी, टू गेट एन आइडिया कि आपको पता है कि नहीं। इसके अलावा IUGR बेबी वेरी इंपॉर्टेंट, KMC अपकार मैंने आपको बता ही दिया रिससिटेशन के टाइम पे, और अनदर वन इज द रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। So this ROP, why it is happening? It is happening because of oxygen toxicity. We know that. तो क्या मैनेजमेंट है? What is the scope for that kid? ठीक है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। न्यू नेटल सीजर्स, अगर पूरा भी नहीं तो फेब्राइल सीजर्स तो पीडियाट्रिक्स में कवर करना ही करना है। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विच इज ऑल्सो नोन एज हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। तो ये पूरा पढ़ना है। और सर्फेक्टेंट ना, डिफरेंट टाइप्स कि कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सर्फेक्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द सर्फेक्टेंट, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द कोएनल एट्रेजिया। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइंग टू पुट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब थ्रू थ्रू द नॉस्ट्रल एंड इट वाज नॉट पॉसिबल, बट व्हेन यू ट्राई टू पुट द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब orally and it easily get inside. So what can be the reason behind it? You can get questions, such questions. नेक्स्ट इज दी ट्रांसिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ये पढ़ना है। इसमें WHO कट ऑफ फास्ट ब्रीदिंग भी है, तो वो कट ऑफ जो WHO ने दिया है वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट इज द न्यूनेटल जॉन्डिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना बताने की जरूरत नहीं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज द साइकेट्री। So you have to start with the terminologies in psychiatry, like what is circumstantiality, tangentiality, confabulation, empathy. There are so many. और आपको terminologies से ही start करना है because it is kind of vocabulary to the psychiatry. If you don't know the terminologies, you will not be able to proceed further. It will be of no use. नेक्स्ट इज दी साइकोफार्माकोलॉजी। ये डिजीज के साथ भी आप पढ़ सकते हो, सेपरेटली पढ़ सकते हो, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आते हैं लाइक एंटीसाइकोटिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एटिपिकल, एक्स्ट्रा पेरिमेंटल सिम्टम्स क्या है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स पे क्वेश्चन आ जाता है, उनके साइड इफेक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, लिथियम पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इज न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स लाइक डिलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया आपका। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। वी हैव थियरीज जैसे साइकोएनालिटिक थ्योरी, एरिक एरिक्सन्स थ्योरी। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें 3 तो कवर करने ही है आपको सब्सटेंसेस, विच इज अल्कोहल, ओपियोइड एंड कैनाबिस। ठीक है, और इसमें अल्कोहल ओपियोइड तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द ECT। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, मतलब बिफोर डूइंग द ECT व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट वी नीड टू डू विद द पेशेंट। ठीक है, एंड ड्यूरिंग ECT व्हाट इंजेक्शंस वी यूजुअली गिव, ये सब कुछ पता होना चाहिए। पोस्ट ECT क्या केयर करनी है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोमेटोफॉर्म एंड डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए आपके, और जैसे कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट, OCD हो गया, मेनिया हो गया। ठीक है, इन सभी के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। इसी में हेलुसिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस, वो भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्किज़ोफ्रेनिया, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग एंड ऑल। इसके अलावा डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। So this was all about the psychiatry. So coming towards the next, which is community health nursing. The first topic is epidemiology. Epidemiology seems very boring. Seriously, it is boring, but it is very important. अगर ये तो तुम्हें पढ़ना ही है। अगर community health nursing start किया है तो epidemiology हो गया, demography हो गया, तो पढ़ना ही है। तो epidemiology में तुम्हें theories of causation, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा देर इज एन एडवांस मॉडल जो ट्रायंगुलर शेप का मॉडल होता है, वन साइड में जिसके पॉपुलेशन होता है, अनदर साइड देर इज एनवायरमेंट, और अनदर जो कॉर्नर है वहां पे कॉजेटिव फैक्टर होता है, और बीच में ट्रायंगल के बीच में देर इज टाइम। इसका मुझे क्वेश्चन आया था आई थिंक व्हेन इन PGI और समथिंग, इस पे मुझे क्वेश्चन आया था जब when I was appearing for MSc नर्सिंग एग्जामिनेशन। अब तो मेरा कंप्लीट हो गया MSc, बट उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। अनदर वन इज द टूल्स ऑफ मेजरमेंट जो एपिडेमियोलॉजी के अंडर आते हैं, जैसे वैलिडिटी क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिकेसी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये सब आप लिख लो, ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी। जैसे मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी पूछ सकते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज केस फर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, ये सब कुछ आ सकता है। और आपको इसके अलावा आएगा एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स जो है वो एक्चुअली स्टडी डिजाइन ही हैं। जैसे कैसे स्टडी डिजाइन आइदर ऑब्जर्वेशनल होते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल होती है। जो एक्सपेरिमेंटल होती है वो क्वाजी होगी, या फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल आरसीटी वगैरह होगी, तो वही सब कुछ है। तो वो तो आप रिसर्च में भी वो करते हो, कंप्लीट करते हो। इसके अलावा आप इसे पूछ सकते हैं डिजीज से रिलेटेड कि पीरियोडिक या साइक्लिक ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे मीजल्स के क्या हैं 2 to 3 years, रुबेला के 6 to 9 years। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है लेवल ऑफ एविडेंस। हाँ, हायरार्की जो है वो लेवल ऑफ एविडेंस की, जिसमें जैसे सबसे नीचे एनिमल और लैब स्टडीज, देन केस रिपोर्ट्स, केस कंट्रोल, जिसमें सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस टॉप्स दैट हायरार्की। तो ये जो लेवल ऑफ एविडेंस है, हायरार्की है, वो भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव रिस्क क्या है, ऑड्स रेशो क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी के, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज की अगर हम बात करें तो दे कैन आस्क यू व्हाट इज प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, व्हाट इज इंडेक्स केस, हाउ यू कैलकुलेट अटैक रेट, एंड व्हाट इज सेकेंडरी अटैक रेट, ठीक है। और इसमें चेन ऑफ इन्फेक्शन आ जाती है, जो फंडामेंटल में भी आपने कंप्लीट कर ली होगी, तो इसमें फिर से यू कैन रिवाइज। So this was all about the your epidemiology. The next is the demography. Demography also seems very boring, but if you study it in a better way, तो आपको ये interesting भी लग सकती है, ठीक है। डेमोग्राफी क्या है, बेसिकली इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, दे कैन आस्क यू एनुअल ग्रोथ रेट, हाउ यू कैलकुलेट एनुअल ग्रोथ रेट, व्हाट इज द करंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, हाउ यू कैलकुलेट इट, एंड व्हाट इज द करंट डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ इंडिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डेमोग्राफी इज द डेमोग्राफिक स्टेजेस और phases. So how many demographic stages or phases exists, ठीक है। और यू कैन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डेमोग्राफिक स्टेजेस इज लाइक व्हाट birth state start declining at what stage, death rate start declining at what stage, ठीक है, what how you calculate the demographic gap, ठीक है। और कैन डेमोग्राफिक गैप भी नेगेटिव, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि इंडिया कौन सी स्टेज पे है, तो इंडिया करंटली स्टेज 3 पे है, इज लेट एक्सपेंडिंग। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी स्टेज पे होती है, डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी स्टेज पे होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एज पिरामिड पे क्वेश्चन आ सकता है। एज पिरामिड का काम क्या है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताएगा तुम्हें। जो लेंथ ऑफ द पिरामिड पिरामिड है, दैट विल टेल यू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उसके टाइप्स होते हैं एज पिरामिड के, ठीक है, वो पता होना चाहिए। सर्वे सिस्टम्स क्या है इंडिया में, जैसे वी हैव सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वी हैव सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें सेंसस वगैरह देखते हैं। तो ये सब कुछ इसमें आपका ये सब कुछ आएगा, जो आपको कंप्लीटली पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा कम्युनिटी में तुम्हें, जैसे ओबीजी मैंने बोला था फैमिली प्लानिंग आता है, तो कम्युनिटी में भी फैमिली प्लानिंग टॉपिक आता है। तो फैमिली प्लानिंग तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स पता होनी चाहिए कि अगर कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा क्या रोल है, क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में वही सब कुछ आएगा कि एएनसी विजिट्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो एएनएम है, एएनएम आफ्टर डिलीवरी कितनी विजिट्स करेगी, दैट इज नोन एज पीएनसी विजिट। तो कितनी है, वो 4 होती है। जैसे फर्स्ट करनी है फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी, सेकंड करनी है 3rd डे, 7 डे, 6 वीक्स, है ना। तो ये सारी तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके अलावा होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रोग्राम है, तो उसमें भी आशा का काम होता है कि वो होम विजिट्स करती है, ठीक है। अगर होम डिलीवरी हुई है तो फिर कब से विजिट स्टार्ट करनी है, सी सेक्शन अगर हुआ है तो तब कब से विजिट स्टार्ट करनी है, पता होना चाहिए। हाँ, तो ये सब कुछ है। इसके अलावा प्रोग्राम्स भी आते हैं आपको, लाइक रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेट
चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट, लक्ष्य हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये हो गया, और एक कुछ पीएम मातृ वंदना योजना है आपका, ठीक है, एक माँ करके भी है जो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, हाँ यही है। तो ये वगैरह इन सभी पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक होता है अनीमिया मुक्त भारत, वो भी आपको पढ़ना है, उसमें बताना है कि आयरन का डोज क्या है, लाइक फॉर 6 मंथ्स टू 9 years, 6 मंथ्स टू 9 years बोलते हैं, 6 मंथ्स टू 59 मंथ्स, कितना आयरन डोज दोगे, 5 year टू 9 year में कितना दोगे, एडोलेसेंट में क्या है, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए क्या है, तो वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना, है ना, और ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में अगर हम देख लें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो भी हैं तुम्हारे, वो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। और न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट साथ साथ में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग पढ़ोगे कि जो कैल्शियम है वो कितना लेना है, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, ठीक है, मैंगनीज, आरडीए अपडेट अगर कोई आई है तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज हैं, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में कितनी है, फैट में कितनी है, ठीक है। उसके अलावा चीजें आती है जैसे कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर है, ठीक है। प्रोटीन अगर तुमने देखना हो, प्रोटीन इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, फैट के बारे में पढ़ना है। इसमें तुम्हारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी इज नोन एज हिडन हंगर, ठीक है। तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जीरोपथेल्मिया, पेलेग्रा, इन सभी चीजों पे यू कैन गेट क्वेश्चंस इजीली, ठीक है। और लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स के सोर्सेज क्या हैं पता होना चाहिए आपको। और इसके अलावा इन सभी चीजों में आपका आएगा पाश्चराइजेशन, तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस और मेथड्स वी यूज फॉर पाश्चराइजेशन, जैसे कि फ्लैश मेथड है, मॉडर्न मेथड है, इन सभी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट पे बेसिकली अगर हम बात करें तो ये वही होगा कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, इसके अलावा तुम्हारा वाटर को लेके फिजिकल क्वालिटी, केमिकल क्वालिटी, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है। इसमें क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन ओ टेस्ट, तो ये सब कुछ पढ़ना है तुमने। दिस वाज ऑल अबाउट दी न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट। और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कोई नए प्रोग्राम ऐड हुए हैं वो तो जरूर से पढ़ लेना, बिकॉज दे हाई चांसेस कि न्यू प्रोग्राम्स को ज्यादा पूछे, या फिर कोई एडिशन हुआ है कोई एनी रीसेंट प्रोग्राम में, अगेन यू हैव टू लर्न दैट, तो सारे प्रोग्राम्स वगैरह पढ़ने हैं। So this was all about the video. I understand this is very lengthy video, so but it is also beneficial. I'm going to come with the second part of the video, so stay tuned and don't forget to like, share and subscribe.